Hello students, welcome back to my YouTube channel. So let's start unit number 3rd, some important terms used in a magnetism. बच्चे ਅਸੀਂ चैप्टर नंबर 5th ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪਿਕਸ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਅ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ। ਬੱਚੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਕੀ ਆ? ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस। तुसी कोई भी मैगनैटिक फील्ड लाइनस लै लो, ठीक है। जिदा इत्थे की है बी वैक्टर जिहड़ा है मैगनैटिक फील्ड लाइनस लित्तियां गईयां, ठीक है। एक एरिया ले लिया गया दैट इज़ ए, सरफेस एरिया लिता बच्चे ए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ। total number of lines passing through a particular area is known as magnetic flux. so magnetic flux ਨੂੰ denote ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ phi ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। so phi ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ denote ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। phi ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਏ ਵੈਕਟਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਟਾਵਾਂਗੇ +1 ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਬੱਚੇ, ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਵੈਕਟਰਸ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ cos ਥੀਟਾ। ਨਾਓ ਵਟ ਇਜ਼ ਬੀ? ਬੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੇਅਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। इज दैट क्लीयर? वट इज़ एरिया? ए की आ? एरिया ऑफ द सरफेस जिन्ना तुसी पर्टिकुलर एरिया लिता, ठीक है। cos थीटा तो थोड़ा एंगल आ जो तुसी डॉट प्रोडक्ट हटाया। सो ये यूनिट्स की होणगे? वैबर। इन्नी चीज़ क्लीयर होगी बच्चे। ये साडी अज दी फर्स्ट डेफिनेशन सी कि मैगनैटिक फ्लक्स की आ। सो बेसिक बच्चे डेफिनेशंस आ, ध्यान ना समझना। नेक्स्ट आ जो परमेबिलिटी, मैगनैटिक परमेबिलिटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। It is the ability of a material to permit the pass of magnetic lines of force passing through it. ध्यान ना समझो, कहते इट इज़ द अबिलिटी। ये एक तरह की अबिलिटी है किसी पर्टिकुलर मटीरियल की, ठीक है। असी की किता? एक मटीरियल ले लिया, ठीक है। एक मटीरियल ले लो इस तरीके का, ठीक है। मान लो आ कि थोड़ा एक मटीरियल है। असी की किता? इहदे आस पास 2 मैगनेट्स लगाते, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਵੱਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੇਟ ਆ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਥਰੂ ਇਟ ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਸ ਅਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ। इज़ दैट क्लीयर बच्चे? डेफिनेशन ध्यान नाल समझ लग गई। वो वाली एबिलिटी है किसी भी मटीरियल की जदों कि वो की करता? परमिट करता है, उन्होंने अलाउ करता है नंबर ऑफ लाइनस नू पास थ्रू इट। ये पर्टिकुलर मटीरियल दे विचों पास करने के लिए जो परमिट करता उन्होंने असीं बोल दिंदे मैगनैटिक परमेबिलिटी, विच इज़ डिनोटेड बाय म्यू, जिहड़ा कि म्यू दे नाल डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगर ये डेफिनेशन तुहानूं अच्छी तरीके नाल क्लीयर होगी, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਬੱਚੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ। ਕਿਹਦੀ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਟੂ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ पर यूनिट एरिया इन वैक्यूम। आ देख लो, ध्यान नाल देखो बच्चे, आ वाली लाइन जिहड़ी आ ये बाहरों निकल रही है, मैगनेट दे विचों नहीं निकल रही, मटीरियल दे विचों नहीं पास हो रही, ये बाहरों निकल रही है। इसदा मतलब ਇਹਦੀ रेशो लवांगे इन वैक्यूम, ठीक है। आ पूरा जिहड़ा बच्चे ऑपरेटर्स आ असीं किसी वैक्यूम दे अंदर रखिया। सो असीं रेशो निकाली नंबर ऑफ लाइनस किन्नियां जिहड़ियां मटीरियल दे अंदरों पास कर रही डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइनस जिन्नियां कि बाहरों वैक्यूम चों पास कर रही। सो इनू मैथमैटिकली किदां लिखांगे? म्यू आर इज इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय बी नॉट। वट इज़ बी? बी की आ? जिन्नियां टोटल नंबर ऑफ लाइनस किसी मटीरियल दे विचों पास हो रही। बी नॉट की आ? बी नॉट की आ? मैगनैटिक फील्ड लाइनस इन अ वैक्यूम, जिन्नियां नंबर ऑफ लाइनस जिहड़ियां बच्चे वैक्यूम दे विचों पास हो रही। ਇੱਥੇ तक सब नू क्लीयर हो गया। सो ये साडी सैकेंड डेफिनेशन सी मैगनैटिक परमेबिलिटी, विच इज़ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। चलो बच्चे
थर्ड डेफिनेशन पढ़ते हैं, मैगनैटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैगनैटिक इंडक्शन। ध्यान ਨਾਲ ਬੱਚੇ वर्ड तो ही क्लीयर हो रहा। मैगनैटिक फील्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ स्ट्रेंथ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਸਟਰੈਂਥ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਨੋਰਮਲ ਏਰੀਆ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਨੋਰਮਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਯੂਨਿਟ, ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 1, ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਏ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਗੱਲ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਜਦੋਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਯੂਨਿਟ ਨੋਰਮਲ ਏਰੀਆ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ, ਫਾਈ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਏ। ਫਾਈ ਕੀ ਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ, ਔਰ ਏ ਕੀ ਆ, ਏਰੀਆ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਏ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਬੀ ਨੂੰ ਐਸ ਐਚ ਬੀ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਆ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੈਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अंदर ही आप प्लेन लै रहे हैं, मतलब लेंथ इंटू ब्रैथ था, दैट इज़ मीटर इंटू मीटर। सो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, मीटर इंटू मीटर। सो ਸਾਡੇ को आ गया ਵੈਬਰ पर मीटर स्क्वेयर। ठीक है जी। सो ਵੈਬਰ पर मीटर स्क्वेयर ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼। ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, मैग्नेटाइजिंग फोर्स एंड अ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी तो क्लीयर हो रहा कि कितनी ज़्यादा फोर्स या कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी आ कि मैगनैटिक फील्ड की। ध्यान ना देखो, द डिग्री अप टू विच अ मैगनैटिक फील्ड कैन। बच्चे तुसी पूरा लिखना मैगनैटिक फील्ड कैन मैगनेटाइज अ मटीरियल। ठीक है, सानू पता कि असी की लिता सी, इस तरह ना एक मटीरियल लिता सी। सो मटीरियल के आस पास असी की लिता सी, नॉर्थ एंड साउथ पोल। असी लिखिया सीगा कि इस तरीके नाल जिहड़ियां मैगनैटिक फील्ड लाइनस आ वो पास हो रही हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ। मेरी थोड़ी जी टेढ़ियां चले गई बच्चे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइनस आ। ठीक है, सो मैगनैटिक फील्ड लाइनस कैन मैगनेटाइज अ मटीरियल। आह वालियां जिहड़ियां मैगनैटिक फील्ड लाइनस आ वो इस मटीरियल नूं किन्ना मैगनेटाइज करदियां आ, इज़ डिफाइंड एज इन टर्म्स ऑफ मैगनैटिक इंटेंसिटी। सो इहनूं मैगनैटिक इंटेंसिटी की फॉर्म दे विच लिखिया जांदा। ठीक है, सो इहनूं समझण दे लई, मैथेमैटिकल समझण दे लई बच्चे सब तो पहलां इत्थे आओ। इस तरह का सोलेनाइड या ट्रॉइडल असी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उत्थे बच्चे जिहड़ी इंटेंसिटी आ किहदे इक्वल हुंदी है, नंबर ऑफ टर्नस मल्टीप्लाई बाय करंट। जिन्ना करंट होएगा तो जिन्नियां नंबर ऑफ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ 1 2 3 4 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਇਨਟੂ ਕਰੰਟ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲੇਨਾਈਡ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਈਡਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, B = μ0 NI। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ थर्ड यूनिट 'ਚ ਬੱਚੇ आर्टिकल याद होएगा। सो ਇਹਦਾ मतलब NI ਦੀ जगह ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, H। सो H आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਫਾਰਮੂਲਾ B = μ0 H। सो ਇੱਥੋਂ H ਨਿਕਾਲ ਲਓ, H ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। सो H ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, B / μ0। सो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ B ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ H ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਆ। क्लीयर हो गया बच्चे, ये साडी फोर्थ डेफिनेशन सी मैगनेटाइजिंग फोर्स एंड मैगनेटिक इंटेंसिटी। बच्चे नैक्सट डेफिनेशन देखो, इंटेंसिटी ऑफ मैगनेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैगनेटाइजेशन आई दे नाल डिनोट किया जाता। सिंपल डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज मैगनैटिक मोमेंट। मैगनैटिक मोमेंट असी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर यूनिट वॉल्यूम। सो असी
सिंपल लिखना है मैथमेटिकल पोर्शन, आई इज इक्वल टू मैगनैटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मैगनैटिक मोमेंट का बच्चे फॉर्मूला की सी एम क्रॉस 2l, ठीक है। वॉल्यूम बच्चे की होंदा लेंथ इंटू ब्रैथ इंटू हाइट। असी लेंथ इंटू ब्रैथ इस तरीके नाल लिखण दी बजाय असी डायरैक्ट लिख दिता एरिया, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रैथ का मतलब एरिया। सो बच्चे डाईपोल की जो पर्टिकुलर लेंथ होंदी है वो कितनी होंदी है 2l। सो इहदी जगह ते असी 2l लिख दिता, ठीक है। सो कन्फ्यूज नहीं होना ए क्रॉस 2l किद्दां आया। सो एरिया पता लग गया बच्चे, लेंथ इंटू ब्रैथ आ गया एरिया, जिहड़ा डाईपोल की पर्टिकुलर लेंथ है वो किहदे इक्वल होंदी है 2l दे। सो 2l आ गया, 2l दे नाल 2l साडा की हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। सो फाइनली आई दा आंसर की आ जाएगा m डिवाइडेड बाय a। वट इज m? पोल स्ट्रेंथ। जो बच्चे साडा इस तरह ना एक मैगनेट हुंदा है उहदी पर्टिकुलर जो इत्थे पोल दी जो स्ट्रेंथ हुंदी दैट इज m, ठीक है। सो हैविंग लेंथ 2l, इसका मतलब पोल स्ट्रेंथ m और a की है एरिया। इन्नी चीज़ बच्चे क्लियर होगी सब नो। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज मैगनेटिक ससैप्टेबिलिटी एंड दिस इज द लास्ट डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंट। बच्चे 1 मार्क्स का कई बार अलग तो क्वेश्चन भी आ जाता कि ससैप्टेबिलिटी की होंदी है। It is defined as the intensity of magnetization to the magnetic force। हुन बच्चे असी मैगनेटाइजेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैगनेटाइजेशन इज आई, सो इट इज़ द रेशो ऑफ, रेशो बच्चे नूं लिखते किद्दां आ जाई एम। ध्यान नाल देखो, इस तरह ना लाइन लगा के इस तरह ना, क्लियर हो गया। पैर विच एम पा देना, ठीक है जी। इंटेंसिटी मतलब आई डिवाइडेड बाय मैगनेटाइजिंग फोर्स। मैगनेटाइजिंग फोर्स असी हुणे सॉल्व करके हटे, उन्होंने कदे नाल डिनोट किया जाता एच दे नाल। क्लियर हो गया। सो ये आ गई थोड़ी मैगनेटिक ससैप्टेबिलिटी। इत्थे तक बच्चे सब नूं क्लियर है। सो अगर बच्चे तुहानूं डेफिनेशन या कोई इन्हां दे विच्चों कुछ ना क्लियर होवे तां तुसीं पुछ सकदे आ। सो इत्थे तक साडियां सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशनस सी। अगर ये नहीं क्लीयर होणगियां बच्चे तुहाडे फरदर कह लो आर्टिकल्स दे विच प्रॉब्लम होएगी। सो ये छोटियां छोटी पहले डेफिनेशनस जिहड़ियां आ अपनियां क्लीयर कर लेना, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।